अयम निज परो वेत्ति गणना लघु चेतसा उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। चल भजन कोण गाय છે આજે? ઉર્વીબેન ને? ઉર્વીબેન અનમ્યુટ કર્યું, સોરી મેં ભૂલમાં તમને મ્યુટ કર્યું. ઉર્વીબેન સ્ટીલ મ્યુટ. યા મ્યુટ છે. હવે તો હવે થયું. સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ. હું આ પહેલી વાર ભજન ગાઉં છું, એટલે ભૂલચૂક થાય તો માફ કરજો. માને તો મનાવી લેજો રે હે ઓધાજી મારા વાલાને વડીને કહેજો રે. માને તો મનાવી લેજો રે હે ઓધાજી મારા વાલાને વડીને કહેજો રે. મથુરાના રાજા થયા છો ગોવાળોને ભૂલી ગયા છો રે. મથુરાના રાજા થયા છો ગોવાળોને ભૂલી ગયા છો રે. માનીતીને ભૂલી ગયા છો રે હે ઓધાજી મારા વાલાને વડીને કહેજો રે. માને તો મનાવી લેજો રે હે ઓધાજી મારા વાલાને વડીને કહેજો રે. એક વાર ગોકુળ આવો માતાજીને મોઢે થાવો રે. એક વાર ગોકુળ આવો માતાજીને મોઢે થાવો રે. ગાયોને સંભારી જાઓ રે હે ઓધાજી મારા વાલાને વડીને કહેજો રે. માને તો મનાવી લેજો રે હે ઓધાજી મારા વાલાને વડીને કહેજો રે. જમુનાને કાંઠે રહ્યા લૂંટી મુને માખણ ખાતા રે. જમુનાને કાંઠે રહ્યા લૂંટી મુને માખણ ખાતા રે. છોડ્યા તુને જૂના નાતા રે હે ઓધાજી મારા વાલાને વડીને કહેજો રે. માને તો મનાવી લેજો રે હે ઓધાજી મારા વાલાને વડીને કહેજો રે. તમે છો ભક્તોના તારણ એવી હમને હૈયા ધારણ રે. તમે છો ભક્તોના તારણ એવી અમને હૈયા ધારણ રે. ગુણ ગાય ભગો ચારણ હે ઓધાજી મારા વાલાને વડીને કહેજો રે. માને તો મનાવી લેજો રે હે ઓધાજી મારા વાલાને
વડીને કહેજો રે, હે ઉધાજી મારા વાલાને વડીને કહેજો રે. જય શ્રી કૃષ્ણ. ખૂબ જ સરસ ભજન હતું. આ લતા મંગેશકરે પણ ગાયું છે. હા હા, તમે સાંભળજો, બહુ જ સરસ ગાયું છે. બહુ સરસ છે, એને સરસ ગાયું છે. કદાચ કવિ દાદે પણ ગાયું છે. અચ્છા, ઈ ખ્યાલ નથી, પણ લતા મંગેશકર નું મેં સાંભળ્યું. યસ, બહુ જ હમ. સરસ ભજન છે. Very good. સરસ ભજન લઈને આવ્યા છે, પહેલી વાર આવ્યા ત્યારે. હા, મને ઘણા વખત મેં એકવાર સાંભળ્યું હતું, 2-3 લાઈન જ. એક મેં સિરિયલમાં સાંભળ્યું હતું આ 2-3 લાઈન, અને પછી મેં ગોતતી હતી, પણ મને એમ આખું મળતું નહોતું ક્યાંય. પછી મને YouTube પર હમણાં જાઓ. ના, યુટ્યુબ પર પણ શું છે કે યુટ્યુબ પર બધા પ્રોફેશનલ ગાતા હોય ને, તો આપણને એટલું સમજાય નહીં બરાબર. અચ્છા. પછી મને એક ગુજરાતી કંઈક વેબસાઇટ છે, એના ઉપર આખું આ લખેલું છે, અને એકદમ સિમ્પલ રીતે એક લેડીએ ગાયું છે. તો મને એકદમ જ રાગ એનો એકદમ મને સમજાઈ ગયો કે આમ જ આ રાગ છે એમ. સરસ, હા. થેન્ક યુ. ચાલો, બ્રહ્મ નિર્વાણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. મારે વાંચવાનું છે. હા, વાહ. 7મો શ્લોક ને 7મો. સાત. जय श्री कृष्ण। नमस्ते बिजल भाई और सर्व मित्रों। मैं 12वां अध्याय भक्ति योग का श्लोक नंबर 7 के बारे में बोलने जा रही हूँ। कोई क्षति या भूल हो तो क्षमा चाहती हूँ। ये श्लोक 6ठा श्लोक का ही अनुसंधान है, और 6ठा श्लोक लास्ट टाइम मयूरी जी ने बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। ये 7वां श्लोक है। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। जब शब्दार्थ कुछ इस तरह है, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। गीता जी में 12वां अध्याय भक्ति योग का विशेष ही महत्व है, क्योंकि इस अध्याय में परमात्मा ने कैसा भक्त होना उन्हें प्रिय है, भक्त कैसा होना चाहिए, भक्त के लक्षण क्या होते हैं और कैसे वह भक्त की मदद करते हैं, वह बताया है। भक्त भगवान को कई तरह से पूछते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भजन करते हैं, उपवास करते हैं, श्रृंगार करते हैं और श्रवण करते हैं। ऐसे कई प्रकार है पूजने के, मगर भगवान को पाने का एक ही रास्ता है कि हम भगवान के प्रीति पात्र बने। जो प्रत्येक इंद्रिय से भगवान को समर्पित है और संपूर्ण कर्म भगवान को अर्पण करके अविचलित भाव शुद्ध भाव से सगुण रूप परमेश्वर का ही निरंतर चिंतन करके भजते हैं, वह परमेश्वर का सबसे प्रीति पात्र भक्त है। परमात्मा कहते हैं, वह भक्त का मैं शीघ्र ही संसार समुद्र से उद्धार करता हूँ। जैसे कोई मनुष्य डूब रहा हो और कोई आकर हाथ पकड़ के बचा ले। हम अपने आप को इतने शुद्ध कर दे, इन सारे लक्षणों में से थोड़ा तो अपना ले, देवी गुण भर ले और आसारी गुणों का त्याग कर दे। हो सके भगवान ही हमें चुन ले, परमात्मा खुद ही हाथ थाम कर मुक्ति दे दे। यह एक अवसर है, हम यात्रा अपनी सफल बना सकते हैं। ईश्वर को समर्पण भाव से पूजे, यह एक साधना है, और साधना के बिना सिद्धि संभव ही नहीं है। तो ये अवसर मिला है हमें गीता का अध्याय का स्वाध्याय करने का, तो चलो इसमें से कुछ हम भी पाले और आगे बढ़े। उसके लिए विजय भाई का ऑलवेज आई एम थैंकफुल टू हिम, और हमारी आज्ञा आगे बढ़ाए यात्रा, और कुछ भी भूल हो तो क्षमा की आशा रखती हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छा बोला आपने, सही बोला। और क्षमा करने वाले हम कोई नहीं है, किसी को जज करने वाले हम कोई नहीं है, वो भगवान कृष्ण को करने दीजिए।
बहुत अगली ही बार अच्छा, बहुत ही अच्छा वेरी एक्सप्लेनेशन वेरी किया। अगली बार श्लोक Thank नंबर you. 8 अभी से कोई कंफर्म करना चाहेगा? 8वां श्लोक कौन एक्सप्लेन करेगा? भगवत गीता अध्याय 12 लास्ट टाइम भक्ति योग। कुणाल ने बोला था बिजल भाई कि वापस आने के बाद वो शायद नेक्स्ट श्लोक समझाना चाहेगा। बट नाउ ही इज नॉट देयर। नो ही इज नॉट देयर टुडे, कंफर्म? ही इज हाँ, रिटर्निंग टुडे, सो उसने बोला था नेक्स्ट ट्यूसडे वो करेगा। आई टेक अ कंफर्मेशन इन द ग्रुप। फाइन। तो टेंटेटिवली कुणाल जी 8वां श्लोक भक्ति हाँ, योग उसको का बोलूंगी मैं कल ही कंफर्म कर लेने के लिए। फाइन। चल आगे बढ़ने से पहले आज हमारे साथ कामिनी जी गोरेगांव से ज्वाइन हुए हैं। कामिनी जी, आर यू देयर? कैन यू स्टार्ट द वीडियो? म्यूट है वो। ओके, आ जाएंगे तो उनका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा मैं। गोरेगांव से ज्वाइन हुए हमारे साथ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग। पिछली बार 8वें श्लोक पर हमने विचार किया। प्रकृति स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। विसृजामि यानी सर्जन करता हूं, अगेन एंड अगेन। किसका मैं सर्जन करता हूं और कैसे करता हूं? प्रकृति स्वाम यानी मेरी जो प्रकृति है, भगवान की 2 प्रकृति है, परा और अपरा, जो भगवान की शक्तियां है। स्वाम अवष्टभ्य, ये सबसे बड़ा अंतर है ईश्वर में और हम में। हम सारे जीव प्रकृति के कंट्रोल में, नियंत्रण में है, जबकि इन केस ऑफ भगवान प्रकृति उनके कंट्रोल में है। स्वाम अवष्टभ्य यानी प्रकृति जो मेरी है उसको मैं मेरे नियंत्रण में लेकर विसृजामि पुनः पुनः, अगेन एंड अगेन, इस सृष्टि का मैं सर्जन करता हूं। भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृतेर अवशात्। मैं किसका सर्जन करता हूं? भूतग्रामम इमं, ये सभी भूत, सभी जीव, चराचर जड़ चेतन सभी कुछ। कृत्स्नम अवशम, जो सारे के सारे प्रकृति के वश में है, जो सारे के सारे आत्मनिर्भर नहीं, पर निर्भर है। प्रकृति के जो वश में है उनको मैं पुनः पुनः सर्जन करता हूं। तो सर्जन, इसका दूसरा अर्थ क्या हुआ? पुनः पुनः सर्जन किसका नहीं होता है? जो प्रकृति के वश में नहीं है, जो प्रकृति की शक्ति से विमुक्त हो गए हैं। प्रकृति के वश में होना यानी प्रकृति के गुणों के वश में होना। 3 गुण, सत्व रज तम, इन तीनों गुणों के वश में जो है, उसकी इन्फ्लुएंस के अंडर जो है, वो पुनः पुनः उसका मैं सर्जन करता हूं। और जो जीव जन्मांतर की तपस्या से इन तीनों गुणों से मुक्त हो गया, उसको पुनः सर्जन उसको नहीं होता है, वो मुझ में लीन हो जाता है, वो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है, उसकी पुनः रचना नहीं होती है। ये मंत्र तो मिल गया, फॉर्मूला तो मिल गई हमें, लेकिन अप्लाई कैसे करें? कितना कठिन है। प्रकृति के गुणों से मुक्त होना अनकॉन्शियसली होता है, उसके लिए जागरूकता, अलर्टनेस, ध्यान, इसकी आवश्यकता है। मैं कौन हूं ये समझना पड़ेगा। मेरा जन्म क्यों हुआ है? मेरी गति क्या है? मनुष्य जन्म मिला है मुझे, इसके पीछे निश्चित ही कुछ रहस्य है। 84 लाख योनियां है, उसमें से मनुष्य जन्म ही क्यों मुझे मिला? शायद पीछे के जन्मों में
मैं अच्छे कर्म करता 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 यहां तक मैं आया हूं। अगर ये मैं समझूंगा, फिर मेरे जीवन का लक्ष्य बदलेगा, मेरे जीवन का ध्येय बदलेगा, मेरी सोच बदलेगी, मेरे विजन दृष्टि ये बदलेगी। फिर असत से सत की तरफ, असतो मा असतगमय, असत विश्व से, असत संसार से धीरे 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 मन उपराम होने लगेगा और सत की तरफ आकृष्ट होने लगेगा। शरीर संसार से, प्रकृति से मिला है, तो उसका सहज आकर्षण प्रकृति की तरफ होगा। ये हमारी जो पांचों इंद्रियां है, उछल कूद करती हुई प्रकृति में रहे विषयों को पकड़ने के लिए दौड़ेगी, बट एट द सेम टाइम हमारा आत्मा जो परमात्मा का अंश है, उसका खिंचाव परम तत्व के तरफ होगा। बस ये ही रस्सी खींच, टग ऑफ वॉर हमारे जीवन में चलता रहता है। अनफॉर्चुनेटली इंद्रिय और विषय के तरफ 99% लोग होते हैं, इस तरफ एक ही लोग होता है, क्योंकि ध्यान नहीं है हमारा, ज्ञान नहीं है हमें। ध्यान क्यों नहीं रहता है? क्योंकि ज्ञान नहीं है। जब इस बात का ज्ञान आता है, जब मन में समझ आती है, तब ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान उस तरफ जाता है। तो ज्ञान होना अति आवश्यक। जब तक ये ज्ञान ही नहीं होगा, ये मैं परम तत्व का अंश और मेरा लक्ष्य, मेरी गति पुनर्जन्म से पुनः शरीर प्राप्त करने से मुक्त होना, ये मेरी परम गति है। ये ज्ञान आने के बाद ध्यान करना इजी होता है। तो मनुष्य जीवन की परम सफलता प्राकृतिक गुणों से हटकर ईश्वर के तरफ, ईश्वर के समीप जाए। ऐसा जो व्यक्ति है जो प्रकृति के वश में नहीं है, उसे पुनः पुनः उसका सर्जन करना नहीं पड़ेगा। ये भगवान ने 8वें श्लोक में कहा। पिछली बार हमने विस्तार से चर्चा की कि कैसे हमारी वासनाएं, हमारे कर्म, यही हमें दूसरा जन्म दिलाते हैं। तो ये 8वां श्लोक था। इससे आगे बढ़ते हैं। जब भगवान सर्जन करते हैं पृथ्वी का, संसार का, सृष्टि का, हम हमारे से एक बार सोचें, यदि हमने कुछ बनाया, कुछ सर्जन किया, तो वो क्यों किया हमने? मानो किसी ने नया घर लिया और बहुत ही सुंदर उसे फर्निश किया, डेकोरेट किया। ये क्यों किया हमने? सिंपल क्वेश्चन। हम क्यों नया अच्छा घर लेते हैं? क्यों उसको डेकोरेट करते हैं? क्यों उसको फर्निश करते हैं? क्यों मेहमानों को बुलाते हैं? हाउस वार्मिंग पार्टी। व्हाई डू वी डू दिस? ये मैं पूछूं तो सिंपल क्वेश्चन। We are attached to this material concept of owning a house, creating it, and then living in it, enjoying the benefits, and it is all materialistic. Whereas ये Krishna is not attached to whatever he will create. yes, ये अटैचमेंट यानी आसक्ति। आसक्ति का मूल क्या है? Why are we attached to that house, that new home? Because ये हमारे मन के अंदर इच्छा थी, एक अच्छा घर हो, बड़ा घर हो, अच्छा हम उसे सुंदर सजाएंगे। तो ये एक इच्छा से हम करते हैं, और जब ये कर लिया तो मेरे अंदर क्या उत्पन्न हुआ? खुशी। हाँ, खुशी हुआ। खाली खुशी की और कुछ भी? Sense Is it- of it is achievement. सरल खुशी, एकदम सरलता पूर्वक खुश होते हैं? नहीं, it is, उसके it साथ is a कुछ और sense जुड़ा of हुआ होता है। sense of achievement, pride Sense of of achievement, achievement. and What is pride of sense of ownership. achievement? Pride. Pride of ownership. Yes, pride of ownership, sense of achievement. Achievement मतलब कर्तृत्व भाव, मैंने ये किया। ये भाव हमें खुशी दिलाती है। एक तो कुछ पसंद आया वो खुशी दिलाती है, और मैंने किया ये। ईगो। ईगो, ईगो कर्तृत्व भाव से कहते हैं। ये कर्तृत्व भाव एंजॉय कौन करता है? हमारा ईगो करता है।
પણ ગીતાજી સાંભળ્યા પછી, ગીતાજીના પાઠ કર્યા પછી આપણને એમ થાય કે ભગવાનની કૃપા હતી એટલે થયું. બસ આપણે નિમિત્ત માત્ર છે, કારણ એ છે. હા. Yes. બસ એ સમજાવે છે. આપણે એ સમજવાનું છે આની અંદર कर्तृत्व भाव. आज मेरा मेरा लड़का कॉलेज में फर्स्ट आता है. फर्स्ट कौन है? मेरा लड़का. लेकिन प्राइड किसे होती है? मुझे होती है. ये क्यों होती है? मेरापन है ना उसमें. माय सन. अरे भाई, मेहनत करके दिमाग लगा के फर्स्ट वो आया है और सारे गांव में आप कहते फिरते हो मेरा लड़का फर्स्ट आया. ये जो ओनरशिप की प्राइड है, मेरा लड़का, तो ये कर्तृत्व भाव, मेरापन, आसक्ति, जब भी कुछ हम सर्जन करते हैं तो हमारे साथ ये जुड़ी हुई होती है. तो भगवान तो ब्रह्मांड का सर्जन करते हैं, तो भगवान को आसक्ति नहीं होती होगी? भगवान को कर्तृत्व भाव नहीं होता होगा? अरे इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया मैंने, इतना सुंदर विश्व बनाया ना मैंने. जरा कश्मीर में जाओ, ब्यूटी देखो उसकी. जापान में जाओ, जब चेरी ब्लॉसम्स आती है तभी, तो भगवान को कर्तृत्व भाव नहीं होता होगा? कितने सुंदर पक्षी बनाए मैंने. कलर्स देखिए जरा उसके, सबके अलग कलर्स, सबका अलग कंठ मधुर, फलों में रस, इतनी मिठास. भगवान को तो बहुत अभिमान आना चाहिए ना. और उस भगवान का सबसे सुंदर क्रिएशन मनुष्य. क्या सैंपल बनाया है भगवान ने. म्यूजियम में रखने जैसा सैंपल बनाया है भगवान ने. ये मनुष्य पहले प्राणियों को मार देता है और फिर सेंचुरी बनाता है उनके लिए. अरे ये तो एक्सटिंक्ट हो रहा है, अभी बचाओ उसको. तो ये कर्तृत्व भाव होता होगा कि नहीं भगवान को? ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों को. भगवान को आसक्ति होती होगी कि नहीं? कि नहीं होती होगी? इतना जबरदस्त नहीं, विश्व नहीं. बनाने के बाद भी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नहीं. ભગવાનને આપીને આનંદ આવે છે એટલે બરાબર છે. ભગવાન સ્વભાવ બરાબર. પણ આપ્યા પછી આનંદ આવ્યો બરાબર, પણ એનું જરાક અભિમાન પણ આવ્યું કે નહીં? ના. મેં આ નહીં. કર્યું. નહીં, એટલે બધાને ખુશ જોવે છે ને, હા, એટલે પણ એને મેં કર્યું એ ભાવ એમાં હશે કે નહીં? ભગવાનને ના. પાછળ નહીં હોય. નહીં હોય. ઉनको નહીં હોગા? ઉनको એમને આપીને બી આનંદ ના થાય, કારણ આનંદ થાય એનું અર્થ જ છે કે એમને કોઈ જાતનું અટેચમેન્ટ છે. એમને અટેચમેન્ટ છે જ Correct. નહીં. ડિટેચ છે. इट इज अ पार्ट ऑफ हिज मटेरियल एनर्जी कि वो क्रिएट करेंगे, वो जानते हुए कि इसको डिस्ट्रॉय होना ही है, फिर भी वो उतना ही एक्सक्लूसिव और उतना ही कॉम्प्लिकेटेड और उतना बेहतरीन क्रिएट करेंगे हर बार. ही मे डू बेटर एवरी टाइम, बट देयर इज नो ओनरशिप, देयर इज नो अटैचमेंट एंड देयर इज नो डिजायर. चलो इसको हम समझते हैं. कर्मयोग में जाते हैं. जब कर्मयोग किया तब हमने समझा था कि जब हम कर्म करते हैं तो उसके पीछे 3 कारण होता है. 3 कारणों से कर्म होता है. पहला कारण મારું इच्छा, છે. इच्छा या कर्तृत्व भाव, ईगो. હા. मैंने ये किया, ये दिखाना है दुनिया को, मैंने ये किया. या फिर सहज इच्छा, आज पानी पूरी खाने की इच्छा हुई तो वो कर्म किया हमने. ये किसी को दिखाने के लिए हम नहीं खाते, तो स्वयं के आनंद के लिए खाते, कुछ दिखाने के लिए. तो एक कर्तृत्व भाव है, एक इच्छा है. दूसरा है हमारा कर्तव्य भाव. भले किसी को दिखाना नहीं है, भले इच्छा नहीं है, वो हमारे गुण धर्म के साथ जुड़ा हुआ है. जो हमारा गुण यस, धर्म है ये मेरा इसके साथ कर्तव्य है, हमारा इसके लिए मुझे कर्तव्य है. करना है. सुबह 7 बजे बच्चों को दूध देकर, नाश्ता देकर स्कूल भेजना है. मे भी कभी आलस आता होगा, कभी थके हुए होंगे, रात को लेट सोए थे, इच्छा ना होते भी माँ उठ के करती है. क्यों? ड्यूटी. उसके पीछे कर्तृत्व भाव है. आपको कभी होता होगा आज सत्संग अटेंड नहीं करना है, आज नींद आ रही है, आज सो जाना है. ये आपकी इच्छा. आज अटेंड करना ये इच्छा, नहीं करनी है सो जाना है इच्छा. लेकिन जो हमारे एडमिन है वो सो गए तो ये लिंक आएगी कहाँ से और हम मिलेंगे कहाँ से? हमारे एडमिन, उसको रिकॉर्ड भी करना है.
बड़ी मेहनत है, रिकॉर्ड करने के बाद उसको एडिट करके, एडिटिंग में बहुत टाइम जाता है, और उसके बाद अपलोड करना है। तो जो एडमिन होते हैं वो कर्तृत्व भाव से आना ही पड़ता है उसको, और मेरा भी चुटका नहीं, हमारे को भी कर्तृत्व भाव से आना ही पड़ता है। तो एक हम स्वयं की इच्छा से करते हैं, एक हम ड्यूटी समझ के करते हैं, और एक कर्म है, और एक है कारण, जिससे कर्म होता है। जो ईश्वर को अर्पण करने के लिए करते हैं। करते तो हम ये एक प्रकृति का गुण है। प्रकृति क्या है? वृत्तिशील है प्रकृति। आप चाहो ना चाहो, प्रकृति के वश में जो है उसमें परिवर्तन कर्म होता ही रहता है। हमने कितनी बार उदाहरण लिया, आज 9:15 हम लोग सब ज्वाइन किए, अभी तक कितनी बार आप लोगों ने आंखें पलक बंद की, आपने गिना किसी ने? कितनी बार खोला और कितनी बार बंद की? किसी ने नहीं गिना। ये क्या है? से मनुष्य करे तो उसे चेष्टा कहते हैं, जो बिना हेतु होता रहता है वो चेष्टा, अपने आप होता रहता है। पृथ्वी अपने आप घूमती है, कौन धक्का मारता है पृथ्वी को? कोई नहीं। सूर्यની આગળ પાછળ ફર્યા જ કરે છે અબજો વર્ષથી। ये प्राकृतिक कार्य जो बिना हेतु होता रहता है, अगर व्यक्ति करे तो उसे चेष्टा कहते हैं, और अगर ईश्वर के द्वारा हो रही है तो उसे लीला कहते हैं। तो ये जो भगवान सर्जन करते हैं, ना वो आसक्त भाव से करते हैं, ना वो कर्तृत्व भाव से करते हैं। ये भगवान के द्वारा लीला होती रहती है। इसके लिए एक कितना सुंदर कंपैरिजन दे दिया, मेटाफर दे दिया। सृष्टि का सर्जन यानी भगवान जागे, भगवान नारायण, और सृष्टि का लय यानी भगवान सो गए। ये दोनों जो कर्म है, सोते वक्त हम पलक मूंद देते हैं, जागते वक्त पलक खोलते हैं। नींद आना और नींद खुलना, ये दोनों अपने आप होता है, हमारे डिसाइड करने से नहीं होता है, अपने आप होता है। आदत पड़ गई, आप उड़ जाओ अलग बात है, लेकिन प्रयत्न करने से नहीं होता है। कब नींद आ गई कोई नहीं बता सकता। 11 बजे हम लाइट बंद करके बिस्तर पे सोते हैं, लेकिन नींद कब आई कोई एग्जैक्ट सेकंड बता सकेगा? ये मिनट पे नींद आ गई, कहाँ आ गई पता ही नहीं, सहज आ गई। सुबह भी वैसा हुआ, कभी 6:45 कभी 6:30, कभी 7:30, आप नींद खुली। ये दोनों सहज कर्म, इसके लिए सृष्टि के सर्जन और विसर्जन के कर्म भी भगवान की नींद, सोना और जागने से कनेक्ट कर, कि भगवान के द्वारा ये सहज होता रहता। सहज होने का कारण, इसके पीछे ना इच्छा है, ना कोई अभिमान, ना कोई ममता, ये मेरा है इसके लिए मुझे ये करना है। सहज, विदाउट एनी डिसीजन, उसके पीछे कोई निर्णय नहीं। पृथ्वी का उत्पन्न होना, पृथ्वी का लय होना अपने आप होता रहता है। ये एक सहज क्रिया है, ईश्वर के द्वारा होती है, इसके लिए उसको लीला कहा गया। तो ये 90वें श्लोक को पढ़िए आप, आपके सामने भगवत गीता। न च माम तानि कर्माणि निबधन्ति धनंजय। तानि कर्माणि यानी उस कर्म से, कौन से कर्म से? 8वें श्लोक पर, विसुज्यामि पुनः पुनः। ये जो सृष्टि की पुनः पुनः मैं रचना करता हूं, इस कर्म से मैं बंधा हुआ नहीं। न च माम तानि, उस कर्म से, निबधन्ति धनंजय,
निबधंती यानी बंधा हुआ। जिस कर्म से हम बंध गए वो कर्म हमें फल देगा। यदि इच्छा से किया हमने, कर्तृत्व भाव से, ममता से किया, वो हमें फल देगा। लेकिन जो सहज हुआ वो फल नहीं देगा, वो हमें मुक्त कराएगा, अपने आप जो होता रहता है। तो हमारे स्वभाव को हमें अभ्यास से अगेन एंड अगेन करने से अभ्यास कहते। मन चंचल है, हमने जो ध्येय नक्की किया उस पे से हट जाएगा। उस मन को पकड़ के वापस ध्येय पे लाना, ये अभ्यास। आप पढ़ने बैठे, एक पेज पढ़ा, नींद आने लगी, मन को पकड़कर वापस जगाओ, पढ़ना है आपको, ये अभ्यास। तो गुणों का भी अभ्यास होना चाहिए। सोचने से गुण आपके अंदर नहीं आएंगे। हमें सच बोलना चाहिए, सबको पता है, कोई इसका विरोध नहीं करेगा। सबको इच्छा भी होती है कि हमें सच बोलना है, लेकिन क्या सब जगह हमेशा हमसे सच निकलता है? अपने आप से प्रश्न पूछो, ये नहीं निकलता। जहां हम फंसने वाले हैं वहां आसानी से हम झूठ बोल के निकल जाते हैं वहां से, क्योंकि हम सत्य का अभ्यास नहीं कर रहे। तो अभ्यास होना चाहिए। कुछ भी हो जाए सत्य कहूंगा मैं। अभ्यास कितना होना चाहिए? अभ्यास इतना होना चाहिए कि वो हमारा स्वभाव बन जाए। फिर हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि मैंने निश्चय किया है, हमें सत्य ही बोलना है। अब से सहज सत्य ही निकलेगा मुंह से, इसके ऊपर विचार भी नहीं करना पड़ेगा। ये है गुणों को आत्मसात। हमारा क्या हो रहा है? हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, मन को अच्छा लगता है, बुद्धि को अच्छा लगता है, लेकिन हम बदलते नहीं, क्योंकि उन गुणों का अभ्यास नहीं करते हम। धारयति इति धर्म, धर्म सुनने की बात नहीं है, धारण करने की बात। अपने अंदर उतारना चाहिए धर्म, उसके ऊपर जीना चाहिए उस तरीके से, तब उसे धर्म कहा जाता है। तो न च मां तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। मुझे वो कर्म बांधते नहीं है। क्यों नहीं बांधते? उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्म। मैं कैसे जीता हूं? उदासीन आसीन, आसीन यानी होना, उत आसीन। उदास यानी हम जो उदास समझते वो नहीं, उत यानी ऊपर, आसित यानी जो बैठा हुआ है। कोर्ट रूम का सीन है, दो वकील झगड़ रहे, लेकिन जज साहब उत आसीन ऊपर बैठे हैं, वो इस आर्ग्यूमेंट में पार्ट नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं है। वकीलों को लेना देना है, उनके क्लाइंट को बचाना है, लेकिन जज को कोई लेना देना नहीं है, उसको खाली ऑर्डर देना है। अनअफेक्टेड, उदासीन। वो अनअफेक्टेड क्यों है? उसको उसकी कोई असर क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो उससे लिप्त नहीं है। जो कोई भी बात से लिप्त हो गया वो उसमें घुल मिल गया। जैसे पानी में आप गुलाल डालो, पानी लाल हो गया, गुलाल गीला हो गया, दोनों एक दूसरे से लिप्त हो गए। लेकिन पानी में तेल डालो तो तेल ऊपर तैरता है, उसमें घुलता गिलता नहीं। उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। जो हो रहा है उसको होने दो। आप एक दृष्टा स्वरूप से खाली ऊपर से देख रहे हो कि नीचे क्या हो रहा है। बॉम्बे में 26 जुलाई को कितना पानी भरा था 2005। कुछ लोग उसमें फंस गए थे, जबकि कुछ लोग
ऊपर अपने मकान में बैठे घर में खिड़कियों से खाली देख रहे थे नीचे क्या अवस्था है। जो नीचे थे वो सब सहन कर रहे थे, जबकि ऊपर बैठे थे खाली देख रहे थे। उसको दुख भी हुआ होगा, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं हुई कि नीचे इतने पानी में कैसे लोग जा रहे हैं। वो तो जब हम फैक्ट नहीं होते, जब हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, उसे अलिप्त रहते, हम जो सर्जन करते हैं, घर पे 4 मेहमान आने वाले हैं और आपने एक मेनू तैयार किया, आज ये बनाना है, तो आपके मन में कहीं भाव होता है ना कि लोगों को पसंद आए, लोग कहे बहुत बढ़िया बना। ये जो भाव होता है वो क्यों होता है? क्योंकि आप उसे लिप्त है, अपेक्षा है, इच्छा है, सहज इच्छा है, कोई गलत नहीं है। लेकिन जो उदासीन होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे भगवान जो सर्जन करते हैं, उस सर्जन के पीछे कोई आसक्ति नहीं। तो मुझे बहुत प्रेम है ब्रह्मांड से, मुझे बहुत प्रेम है मनुष्य से, जीवों से, आसक्ति है, अच्छा लगता है ये लीला करना, इसके लिए करता हूं जी नहीं। सहज होता है ईश्वर के द्वारा, अपने आप होता है, भगवान की लीला है ये। भगवान हमें अलग अलग योनि में जन्म नहीं देते। जब कल्प का क्षय होता है, प्रलय होता है, तब हमारे ही वासना और हमारे कर्म के फल हमारी आत्मा के साथ विलीन होते हैं महद नारायण। और पुनः जब कल्प का आरंभ होता है, हमारे ही कर्मों के प्रारब्ध के आधार पर, हमारी वासनाओं के आधार पर अपने आप हमें एक नया रूप, एक नई योनि में जन्म मिलता है। भगवान कहते हैं मैं उसमें, इसमें बिल्कुल मेरा कोई रोल नहीं। आपके ही कर्म, आपके ही वासना के मुताबिक आपको सृष्टि में एक नया जन्म मिला। मैं इस कर्म से बिल्कुल बाधित नहीं हूं, क्योंकि मैं उदासीन हूं। मेरे लिए सभी जीव, सभी प्राणी समान है। मैं ना किसी को अच्छा जन्म देता हूं, ना किसी को बुरा जन्म देता हूं। जो भी मिलता है आपको आपके कर्म के आधार पर। इसके लिए उदासीनवतासीन असक्तम तेषु कर्मसु, वो जो सृष्टि के सर्जन का और प्रलय का कर्म है, उस कर्म से मैं उदासीन हूं, अलिप्त हूं। उसमें मेरा कोई रोल नहीं, ना मैं करता हूं ना मैं करवाता। मेरे द्वारा सहज वो होता रहता है। इसके लिए इस सृष्टि के सर्जन और प्रलय का जो भी कर्म है, उससे मैं बंधता नहीं। उस कर्मों का फल मुझे भुगतना नहीं पड़ता है। ये था 9वां श्लोक। न च माम तानि कर्माणि निबधन्ति धनंजय। उस कर्म से मैं बंधता नहीं। क्यों नहीं बंधता? क्योंकि उदासीनवत आसीनम असक्तम। आसीन यानी होना। मैं कैसे होता हूं? मैं उदासीन रहता हूं। इसके लिए मैं अनसक्त। आसक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि मैं उदासीन ऊपर हूं, मैं उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होता। इन्वॉल्व ही नहीं होता तो आसक्ति आएगी कहां से? अटैचमेंट आएगा कहां से? उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। उस कर्म से मैं उदासीन हूं। ये था हमारा 9वां श्लोक। इस श्लोक के ऊपर कोई प्रश्न या कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? ये आगे बढ़े हम? नो क्वेश्चन?
10वां श्लोक इसी श्लोक का कंटिन्यूएशन। 9वें श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने अनासक्त रहने की बात, मुझे इस कर्म से कोई आसक्ति नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैं इस कर्म से लिप्त नहीं, इस कर्म से मैं उत आस ऊपर हूं उससे, ये कर्म मुझे छूते भी नहीं, तो मुझे कोई इच्छा ही नहीं, ये अपने आप होता ही रहता है। मेरी प्रकृति ये करती ही रहती है, परा और अपरा चालू ही रहता है, सर्जन और विसर्जन ये दोनों का। मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में ये जो प्रकृति है, एक है परा, दूसरी है अपरा। सूयते सचराचरम, सूयते यानी रचना करती, सचराचरम चर और अचर, सचर अचर व, यानी सचराचरम। चर और अचर दो तत्व है सृष्टि के अंदर, दो ही तत्व है। चर यानी जो मूवमेंट करता है, इसमें पशु पक्षी मनुष्य ये सब आ गए। और एक अचर जो चर्या, चर्या यानी मूवमेंट, घूमना, जो मूवमेंट नहीं करता। इसमें हम उदाहरण वृक्ष का ले लेते हैं। वृक्ष के पत्ते, टहनियां, फल फूल हिलते हैं, लेकिन वृक्ष कहीं चल के जाता नहीं, अचर है। यहाँ पर उसकी नींव है, मूल है, वहीं पे वृक्ष रहता है। वैसे ही पहाड़ अचर, चल के कहीं भी नहीं जाता। एक चर सृष्टि है, एक अचर सृष्टि। वैसे ही एक चेतन सृष्टि, एक जड़ सृष्टि। एक जड़ है, जड़ क्या है? जिसके अंदर ग्रोथ नहीं है, जो बढ़ती नहीं है, जिसका मूवमेंट नहीं, ग्रोथ नहीं है, मूवमेंट। और एक चैतन्य सृष्टि, इसमें ग्रोथ भी है, रिप्रोडक्शन भी है और मूवमेंट भी। तो जड़ और चेतन सृष्टि के दो तत्व, वैसे ही चर और अचर ये दो तत्व। तो मय्याध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचर, ये सारा चर अचर जो विश्व है, वो प्रकृति मेरी अध्यक्षता में रचना करती है। प्रकृति करती है, लेकिन प्रकृति किसकी अध्यक्षता में करती है? ईश्वर की, भगवान की अध्यक्षता में ये करती है। भगवान ने दोनों प्रकृति को अलग अलग गुण दिए हैं, और कभी भगवान इंटरफियर भी नहीं करते। सृष्टि की जो सिस्टम है वो बराबर चलनी चाहिए। आज बैंक की सिस्टम है कि जिसके नाम का अकाउंट है, जो सिग्नेटरी है, वो साइन करेगा तो ही चेक मिले। अगर पति के नाम का अकाउंट है और उनकी साइन चलती है, तो अगर पत्नी जाके कहे कि ये लो मेरी साइन ले लो और पैसे निकालो, नहीं चलता है। वो बैंक के चेयरमैन की पत्नी को भी पैसा नहीं मिलेगा, भले ही वो बैंक का चेयरमैन हो, उसने बैंक की स्थापना की हो, लेकिन अपनी बनाई सिस्टम वो खुद नहीं तोड़ सकता, वो खुद तोड़ता नहीं। वैसे ईश्वर का है। प्रकृति सृष्टि सबका सर्जन उन्होंने किया, लेकिन ये जो पूरी एक सिस्टम है, इसमें भगवान इंटरफियर नहीं करते, तभी वो स्थिर चलेगी सिस्टम। तो प्रकृति को शक्ति दी भगवान ने, उन्हें कहा ये मेरी शक्ति है, तो उसके द्वारा कार्य कराया। लेकिन प्रकृति भगवान के अधीन है। इसके लिए मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, सारी चर अचर सृष्टि की रचना मेरी अध्यक्षता में प्रकृति करती।
हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हेतु नानेन, अनेन हेतु, अन्य कोई हेतु नहीं, सिर्फ ये एक हेतु। एक सृष्टि के सर्जन के हेतु से प्रकृति सब कुछ करती। जगत विपरिवर्तते, परिवर्तन ये जगत का नियम है, क्योंकि वो प्रकृति का गुण है। प्रकृति परिवर्तनशील है, इसके लिए जो प्रकृति के असर के नीचे है वो सब कुछ परिवर्तनशील, संपूर्ण जगत परिवर्तित हो रहा है। एक एक क्षण में पूरा विश्व चेंज हो रहा है। हम स्वयं भी, हमारा शरीर भी, सब कुछ बदल रहा है। पृथ्वी पे हमें अनुभव नहीं होता है, लेकिन यदि बाहर से देखें तो पता चले पृथ्वी किस स्पीड से घूम हो रही है, किसने स्पीड सेट की पृथ्वी की, और कौन घुमा रहा है? कंटिन्यूस प्रकृति। एक स्थान पर रहती नहीं पृथ्वी, घूमती ही रहती, उसमें परिवर्तन आता ही रहता है, क्योंकि ये प्रकृति से उत्पन्न। तो हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते, सारा जगत परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि बिना कोई हेतु के, अन्य हेतु के बिना इस सृष्टि का सर्जन हुआ है। प्रकृति के असर के नीचे है, उसके लिए उसमें परिवर्तन होता ही रहता है। तो मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। यहाँ भगवान अपना कर्तृत्व भाव नहीं है, वो बता रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये मेरी प्रकृति कर रही। भगवान का कर्तृत्व भाव, मैंने ये किया, ये अहंकार नहीं है। ये श्लोक सिद्ध करता। आगे के श्लोक में उदासीन वतासीन असक्तम, मुझे कोई आसक्ति नहीं, और यहाँ पर मुझे कोई कर्तृत्व भाव नहीं। क्यों? प्रकृति ने किया है, मैंने किया ही नहीं। एक्चुअली देखे जाए तो भगवान उपादान कारण है और प्रकृति निमित्त कारण। प्रकृति ने किया कैसे? भगवान थे तो प्रकृति ने किया। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण। मिट्टी अपने आप घड़े का स्वरूप नहीं लेती है, कुम्हार चाहिए। कुम्हार निमित्त था तो घड़े का सर्जन हुआ मिट्टी में। अगर मिट्टी ना हो तो कुम्हार भी कुछ नहीं कर सकता है, और कुम्हार ना हो तो मिट्टी कुछ भी। एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण। वैसे ही सृष्टि के संदर्भ में भगवान उपादान कारण और प्रकृति निमित्त कारण। भगवान प्रकृति के बिना कुछ नहीं कर सकते, और प्रकृति यदि भगवान ना हो तो कुछ नहीं कर सकते। हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। इस प्रकार भगवान की अध्यक्षता में परा और अपरा प्रकृति बिना कोई हेतु से एक परिवर्तनशील जगत की उत्पत्ति करता है। कहने का तात्पर्य, भगवान कहते हैं इसमें मैं कुछ भी नहीं करता, मेरी प्रकृति के द्वारा ये सब होता है। अध्यक्षता मेरी है लेकिन मैं नहीं करता, मेरी बनाई हुई प्रकृति ये सब करती। तो आज के 2 श्लोक में हमने देखा, 9वें और 10वें श्लोक में, कि भगवान ये जो सृष्टि की रचना करते हैं, इसके पीछे ना भगवान को कोई आसक्ति है, ना कोई अहम है, कर्तृत्व भाव कि मैंने ही। उनके द्वारा, प्रकृति के द्वारा सहज ये सृष्टि का आरंभ और अंत होता ही। तो यहाँ पर आज हम उनकी अध्यक्ष, अगर उनकी अध्यक्षता के नीचे सब प्रकृति बदल रही है,
तो उनकी भी तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, कर्तृत्व भाव नहीं है क्योंकि वो खुद नहीं कर रहे हैं, बट अगर उनकी डायरेक्शन या अध्यक्षता के नीचे हो रहा है तो नेचुरली इज रिस्पॉन्सिबल ना। चलो, स्कूल में एक छोटा बच्चा इज वेरी नॉटी, मस्ती करता है, तो प्रिंसिपल किसको बुलाएंगे? पेरेंट्स को। आपका बच्चा बहुत नॉटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही बच्चा 30 साल का होकर यदि चोरी करे तो पुलिस बच्चे उस 30 साल के आदमी को लेके जाएंगे या माँ बाप को बोलेंगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये बात, भगवान ने प्रकृति को फ्रीडम दे दिया, अपनी तरीके से रचना करो आप, भले ही आप मेरी हो। उसके बाद यू कैन नॉट होल्ड भगवान रिस्पॉन्सिबल। जैसे बच्चा बड़ा हो गया, बाद में जो वो कर्म करता है उसके लिए पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते हम। वैसे ही प्रकृति को जब फ्रीडम दिया, उसको शक्ति है उसके पास, उसके बाद प्रकृति अपने द्वारा जो भी निर्माण करती है वो कर्म उसके लिए भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं। ये बात, जब हम बड़े हो गए देन वी कैन नॉट ब्लेम आवर पेरेंट्स। हमें फ्रीडम चाहिए था, बड़े हो गए, फ्रीडम मिल गया, अब अच्छा करे तो भी हमारा, बुरा करे तो भी हमारा, देन वी कैन नॉट ब्लेम पेरेंट्स। वैसे भगवान ने जब प्रकृति को फ्रीडम दिया अपने आप करो, उसके बाद भगवान को कोई ब्लेम नहीं करता। ये बात। एनीथिंग एल्स? की प्रार्थना करें हम। कामिनी बेन इज देयर? ज्वाइन किया हुआ है। Anyway, चलिए। कर चरण कृतम वाक कायाजम कर्मजम वा श्रवण नैनम च वा मानस वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ओम शांति शांति शांति। जय जय श्री कृष्ण।